everybody, a lot of important tier 1.5 to 2 colleges are now out with their outcomes, and a lot of people are thinking, how do I make my selection? So today we are going to compare some very, very important colleges. You have TAPMI, you have IMI, you have IMT, 4 Delhi, all these very important colleges in the same set of cohort, which is your tier 2 cohort. So in this set of colleges, what a college stands out, which is yours most suitable selection, is what we're going to discuss. Let me quickly introduce myself. This is Sudhanshu, Cat 99.7 Quants 100. I am Lucknow. Okay. Let me quickly share my screen with all of you. For this very important session, we have some data points that we are going to discuss. Naman, I want to take NIBM separately, but let me, quickly take up, the rest of the colleges that is there, right? So these are some of the colleges जिसके लिए आपका रिजल्ट अभी आउट हो चुका है. आई थिंक मेनी ऑफ यू आर नाउ थिंकिंग कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं. आई एम होपिंग एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी. एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म करेंगे. So typically, I'm going to look at IMI, IMT, XIMB, GLIM Chennai, TAPMI, Jim Core, and 4 Delhi. So these are the colleges that we're going to look at. Let's look at these colleges and understand which college makes the right selection. I'm going to take up a lot of important parameters. I'm going to look at fees. I'm going to look at average salary. I'm going to look at median, the batch size, percentage unplaced, which has been reported, by the students at these colleges. What is the ROI risk like, and what are the major recruiting sectors, typical roles, brand strength कितना है, location का advantage है या नहीं है, and finally some of our important observations with respect to these colleges. Let's get started. I'm hoping everybody is with me so far. For all the people new to the channel, keep the channel subscribed for all the important updates regarding college selection, regarding MBA entrance preparation. CAT 26 is going to come in, and this season is now going to sort of come to a conclusion now that all our students are going to get into all the important colleges. Let's get started with this discussion. Okay. So सबसे पहले दोस्तों, what all colleges do you have? एक बार सब लोग पहले फटाफट चैट में हैं इसके अंदर, एंड कैसे पिकअप हमको करना चाहिए, एंड सिमिलर जैसे बाकी के रिजल्ट्स आएंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. जैसे ही बाकी के रिजल्ट्स आएंगे वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो कि हाउ शुड यू मेक योर सिलेक्शन. तो अभी इन कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं चैट में डालते चलो, उसके बारे में बात भी करते हुए चलेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमआई दिल्ली. आईएमआई दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो नियरली आपका 26-28 lakhs, ठीक है, स्लाइटली अब हो सकता है 30 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा. अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एवरेज वाले रेंज में हम लेके चलें तो एवरेज आपका 15 to 17 वाले रेंज में बनता है. मीडियन आपका 14-16 रेंज में यहाँ पे बनता है, ठीक है. अगर हम बैच साइज देखें तो 400 प्लस आपका बैच साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. अगर हम इस साल का रिपोर्टेड देखें टिल द टाइम the season was going on, the sessions were going on, and the placement was going on in the campus till that point in time, nearly able to place approximately 85% of the batch, which is a healthy number, by the way. It's not a bad number, it's a healthy number actually. अगर आप देखें कि 85% लोग अगर प्लेस हो रहे हैं तो ये ठीक नंबर है, मतलब खराब नंबर नहीं है, ठीक है. ओके. चिराग, बाकी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. पहले ये सब लोग फटाफट देख लो, ठीक है, इसको देख लो. उसके बाद बाकी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. फ्रीक सिटी, एब्सोल्युटली एसआरसीसी जीबीओ भी लेके आएंगे अगले वाले सेशन के अंदर. And we'll take up the other colleges also. Okay. For all the people new to the channel, keep the channel subscribed so that you do not miss out on these very important sessions to help you make a comparison. Okay. So if I talk about ROI risk, so from that standpoint ठीक ठाक है, सेफ है. ROI रिकवरी में थोड़ा सा देर लग सकता है, देर है अंधेर नहीं है, तो सेफ है, ठीक है, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट. मेजर रिक्रूटिंग सेक्टर्स अगर हम देखें तो BFSI, कंसल्टिंग, FMCG एंड IT, यहाँ पे मेजर रिक्रूटिंग सेक्टर्स आपके बनते हैं, ठीक है. टिपिकली आपको मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग, इस टाइप के रोल्स आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं. एंड IMI इज अ स्ट्रॉन्ग टियर 2 कॉलेज. अब देखो टियर 2 में भी अगर हम देखें कि कौन से कॉलेजेस तुम्हारे स्ट्रॉन्गर टियर 2 कॉलेजेस हैं, IMI, IMT गाजियाबाद,
XIMB, these आर स्ट्रॉन्गर टीयर टू कॉलेजेस। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है फ्रॉम रिक्रूटर ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑल्सो। मतलब आप मान के चलो कि 80-85% लोग प्लेस हो जाते हैं। तो उतना घबराने वाली बात नहीं है अगर आप यहाँ जा रहे हो कि भाई मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। वो चीज यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। लोकेशन एडवांटेज, कॉर्पोरेट हब दिल्ली NCR, ऑब्वियसली दैट्स एन एडवांटेज, बिकॉज यहाँ से जब भी आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैव टू टेक लाइव प्रोजेक्ट्स, तो लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर कई बार आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रैवल भी करना पड़ता है टू द ऑफिस लोकेशन, इन विच केस a hub like Delhi NCR or a Mumbai is always an advantage, right? So if I look at the overall summary of this college, balanced college, exposure अच्छा है, रोल्स अच्छे हैं आपके टॉप के। आप फॉर एग्जांपल अगर कंसल्टिंग या फाइनेंस में आप ये सोचोगे कि मेरे को एकदम टियर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप के रोल्स मिल जाएं या मैकिंजी बेन BCG टाइप के रोल्स मिल जाएं, तो वैसे रोल्स तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि भाई प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू डू योर बेस्ट तो आपको अपना प्लेसमेंट जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू माइट गेट इनटू लेट्स से अ टियर 2 फाइनेंस काइंड ऑफ अ रोल और अ टियर 2 कंसल्टिंग रोल, बट वहां से आप मेहनत करके आगे चीजों को इम्प्रूव करके लेके चल सकते हैं, तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि मैं टियर 1 फाइनेंस रोल्स के अंदर या टियर 1 कंसल्टिंग रोल्स के अंदर लेट्स से द MBBs ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर यहाँ पे लिमिटेड रहता है। सो दैट इज समथिंग आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। लेगेसी मार्केटिंग कॉलेज IMT गाजियाबाद के बारे में बात करते हैं। लेगेसी मार्केटिंग कॉलेज करीब करीब यहाँ भी आपका भाई अप्रोक्सीमेटली 28-30 लाख का इन्वेस्टमेंट आप लेके चलो, अगर हम ओवरऑल स्पेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एवरेज अगर हम IMT गाजियाबाद का देखें तो आपका इस साल का अप्रोक्सीमेटली 16-18 का एवरेज चल रहा है, 15 to 16 का मीडियन चल रहा है, ठीक है। तो मीडियन आपका प्राइमरली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग स्लाइटली बेटर IMI के कंपैरिजन में। बैच साइज सारे के सारे अगर प्रोग्राम्स हम मिला के देखें, मार्केटिंग, PGDM कोर, उसके अलावा आपका BFSI भी है, आपका फाइनेंस भी है, ऑपरेशंस भी है, तो यहाँ पे बैच थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। उसके बाद भी अगर कॉलेज आपका 80-85% लोगों को प्लेस कर रहा है तो अच्छा है, स्टैट है, खराब स्टैट नहीं है। तो उस हिसाब से मैं नहीं कहूंगा कि कॉलेज खराब है, कॉलेज ठीक है, डिसेंट कॉलेज है। मेजर रिक्रूटिंग आपको यहाँ पे जो मिलता है वो आपका मार्केटिंग हैवी है, ठीक है। मार्केटिंग हैवी आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा फॉर श्योर। मार्केटिंग की कंपनीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी ओवरऑल रिक्रूटमेंट के अंदर, मार्केटिंग का कंपोनेंट सबसे ज्यादा रहेगा। उसके अलावा आपका BFSI और IT बेस्ड रोल्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड BFSI आर द टिपिकल रोल्स दैट यू विल गेट हियर, ठीक है। मार्केटिंग का लेगेसी है, अगर आप फॉर एग्जांपल IMI दिल्ली, IMT और XIMB के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग डोमेन ऑप्ट करना चाहते हैं तो IMT गाजियाबाद नो ब्रेनर है, आपको IMT गाजियाबाद के साथ जाना चाहिए। लोकेशन एडवांटेज अगेन दिल्ली NCR, कहना थोड़ा सा कठिन है लेकिन ठीक है, कहना चाहिए दिल्ली NCR, टेक्निकली दिल्ली NCR है। बट जेन्युइनली यहाँ पे आपको लोकेशन का उतना एडवांटेज नहीं है जितना आपको फॉर एग्जांपल बाकी कॉलेजेस के अंदर जैसे कि IMI एटसेट्रा में आपको देखने मिलता है, बिकॉज गाजियाबाद से बहुत ही नेचुरली आपका दिल्ली का जो हब है या गुड़गांव का जो आपको कॉरपोरेट हब है, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो बट बहुत फ्रीक्वेंटली आप नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लोकेशन का यहाँ पे बनता नहीं है। बैच साइज बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आउटकम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, पर कॉलेज अच्छा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम टॉप 30-40% अगर हम बैच का देखें तो अच्छा परफॉर्म करता है। बैच साइज की वजह से ही ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे काफी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम IMT गाजियाबाद का अगर लेट्स से मान ले मार्केटिंग प्रोग्राम को हम स्पिन ऑफ कर दे तो IMT गाजियाबाद रैंकिंग में काफी ऊपर चला जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग डोमेन के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस है IMT गाजियाबाद का। सिमिलरली अगर बात करें XIMB, अगेन सिमिलरली 28-30 लाख इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर हम बात करें इस साल के प्लेसमेंट्स के अंदर तो XIMB ने अच्छा परफॉर्म किया है। XIMB का अगर हम एवरेज सैलरी अप्रोक्सीमेटली 17 to 19 रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स, 17-18 का मीडियन विच इज स्लाइटली अबव द अदर टू इन द सेम कोहॉर्ट। तो टिपिकली हम IMI, IMT और XIMB को एक ही ब्रेथ में डिस्कस करते हैं हमेशा। तो एक जो कोर एडवांटेज है वो अपना देखो बैच साइज का भी है।
ठीक है, बैच साइज का भी एक एडवांटेज है, एंड बैच साइज ऑब्वियसली अ फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर। अगर बैच साइज थोड़ा सा कम होगा तो प्लेसमेंट कराना रिलेटिवली आसान होगा, दैट इज रियलिटी। एक और चीज मैं अभी ये बोलूंगा कि थोड़ा सा अभी जो वॉर वाला सिचुएशन है जिसकी वजह से जो आपका इंटायर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक करना एंड इन्फ्लेशन गोइंग अप माइट हैव सम इम्पैक्ट इन द समर्स। तो समर्स के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर क्रिएट करेगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। सिर्फ टीयर टू में नहीं, टीयर वन में भी इस साल थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एज फार एज समर प्लेसमेंट इज कंसर्न। तो जितने लोग भी कोई ना कोई कॉलेज कन्वर्ट करके बैठे हैं, अपने समर्स की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड विद द लॉन्च पैड प्रोग्राम विच इज अ प्री एमबीए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर वी हेल्प यू विद सीवी बिल्डिंग ऑल्सो। आपको कौन से टाइप के सीवीज बनाने चाहिए, कौन से डोमेन आपको टारगेट करने चाहिए किसी भी कॉलेज के अंदर। अब आप जा रहे हो लेट्स से ऐसे कॉलेज में जहाँ पे फॉर एग्जांपल भाई बीएफएसआई कंसल्टिंग एफएमसीजी आईटी है, वहां तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोफाइल बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें शॉर्टलिस्ट ही नहीं आएगा, राइट। सो सीवी कैसे बिल्ड करना है एंड इन डोमेन्स के बारे में पढ़ना अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एमबीए लॉन्च पैड प्रोग्राम। हियर इज द हेल्पलाइन विच इज शेयर विद यू, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों एक दो और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। एक्सआईएमबी के अंदर अगर हम देखें तो कंसल्टिंग, बीएफएसआई, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट। ओम शंकर is saying hello sir, I am from Om from the Litmus family 24 batch. I wanted to check if there is any placement training program at Litmus as the six cap is limiting my opportunities in the upcoming placement season. Om, absolutely, do drop in a text at the helpline right away. We will connect with you instantly and help you out with the placement process. We are doing right now we are doing specific programs for summers and final placements also for people who are into the final placement right now. Summers तो अभी किसी का नहीं चल रहा है, बट जो लोग फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम टू इफेक्टिवली बैग गुड प्लेसमेंट्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो एक्सआईएमबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बीएफएसआई, ऑप्स, देखो बीएफएसआई आपको कॉमन मिलेगा। आप किसी भी टीयर टू कॉलेज के अंदर जाओगे ना, बीएफएसआई आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ऑलमोस्ट सारे ही टीयर टू कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका आईएमटी गाजियाबाद थोड़ा सा मार्केटिंग हैवी ज्यादा है, आईएमआई तुम्हारा थोड़ा कंसल्टिंग ओरिएंटेड ज्यादा है, एक्सआईएमबी अगेन तुम्हारा कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड थोड़ा सा ज्यादा है, ऑप्स ओरिएंटेड, ऑप्स का भी एक अच्छा मिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन स्ट्रॉन्ग आपका टीयर 1.5 टू 2 भी 1.5 कुछ लोग बोलने लगे हैं इस साल। एक्सआईएमबी का परफॉर्मेंस ठीक है, प्लेसमेंट्स के अंदर लगभग लगभग 90% लोग प्लेस हो गए हैं यहाँ पे, तो विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अगर हम इस कोहॉर्ट में देखें प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सआईएमबी काफी अच्छा कर रहा है राइट नाउ, एंड आई थिंक बैच साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। बिकॉज बाकी दोनों कॉलेजेस भी सिमिलर पोटेंशियल है, लेकिन बैच साइज ज्यादा होने की वजह से वो प्लेसमेंट वाला नंबर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं और सेट ऑफ तीन कॉलेजेस जो हम जनरली सेम ब्रेथ में बोलते हैं हमेशा, ग्लिम, चेन्नई, तापमी एंड जिम, ठीक है। तो अगर हम टीयर टू में देखें तो ये आपका अपर टीयर टू हो जाएगा, आईएमआई, आईएमटी, एक्सआईएमबी। अगर ये तीनों है तो आप इन तीनों के बीच में अगर मार्केटिंग ओरिएंटेड है तो आईएमटी डिसाइड करो, अगर आप कंसल्टिंग या थोड़ा बहुत फाइनेंस ओरिएंटेड है तो आईएमआई जा सकते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बीएफएसआई थोड़ा जेनमैन, थोड़ा सा ऑप्स ओरिएंटेड जाना चाहते हैं तो आप एक्सआईएम भी जा सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू मेक द डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू दीज थ्री, ठीक है, आपका आईएमआई, आईएमटी एंड एक्सआईएमपी, राइट। अगर हम बात करें सिमिलरली ग्लिम चेन्नई, तापमी एंड जिम गोवा, अगेन इन तीनों में फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम देखें तो आपका 22 to 25 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट बनता है यहाँ पे। अगेन हम यहाँ पे अगर देखें तो ग्लिम चेन्नई के अंदर 15 to 17 का एवरेज, 14 to 16 का आपका मीडियन चल रहा है। तापमी के अंदर ये नंबर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है जो लास्ट हमने रिपोर्ट किया था वहां से, तो आप 13 to 14 का रेंज यहाँ पे लेके चल सकते हो इन एवरेज सैलरी एज वेल एज इन मीडियन, ठीक है। अगेन अगर हम बैच साइज देखें तो कंबाइंड बैच साइज आपका तापमी के अंदर, जिम के अंदर काफी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज इनके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इनके अंदर सिर्फ तुम्हारा एक ही प्रोग्राम है, राइट। तो तुम्हारा एक कोर प्रोग्राम होता है, उसके साथ में मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स होता है, जैसे जिम में तुम्हारा बीडीए प्रोग्राम, बीएफएसआई प्रोग्राम, करेक्ट। सो देयर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स असाइड द कोर, जिसकी वजह से तुम्हारा बैच साइज इंक्रीज हो जाता है
और प्लेसमेंट होता है तुम्हारा कॉमन। अब कॉमन प्लेसमेंट या पूल प्लेसमेंट होने की वजह से जो भी आपके फॉर एग्जांपल लोग नॉन कोर में हैं उनकी अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज हो जाती है और कोर वालों की अपॉर्चुनिटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। ठीक है। तो दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल आप नॉन कोर में हो तो आपके लिए थोड़ी खुशी की बात है, और अगर आप कोर में है तो थोड़ा सा आपके लिए दुख की बात है, क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटी शेयर हो जाएंगे नॉन कोर वालों के साथ में। दैट इज फॉर श्योर। मल्टीपल कॉलेजेस के केस में यही देखा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों कॉलेजेस के अंदर, तो आपको नियरली 15 to 20% अनप्लेस देखने को मिलता है फाइनल्स में। एक और चीज याद रखना, ये नंबर्स फाइनल्स के हैं। अगर फाइनल्स के नंबर, आपके जो नंबर ऑफ पीपल अनप्लेस्ड समर्स में हमेशा आपका ज्यादा होगा, अनप्लेस्ड का नंबर समर्स में ज्यादा होता है। उसका अगेन प्राइमरी रीजन होता है लैक ऑफ अलाइनमेंट, मार्केट अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। देखो फाइनल तक जाते जाते ना लोगों को मार्केट अवेयरनेस हो जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेरे को कोई नहीं ले रहा है, तो मैं कंसल्टिंग में घुस जाऊंगा, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में घुस जाऊंगा, मैं ऑपरेशंस में चला जाऊंगा, जनरल में चला जाऊंगा। वो चीज समर्स में नहीं होती है। तो आई विल सजेस्ट के यू शुड कनेक्ट विथ फॉर एग्जांपल सीनियर्स, यू शुड कनेक्ट विथ एलम्स, यू कैन कनेक्ट विथ अस आल्सो इफ यू वांट एन एक्सपेक्टेशन सेटिंग कि तुम्हें कौन सा डोमेन पिक करना चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा डोमेन सही है, तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से और तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से, जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो और जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। इसी बेसिस पे तुम अभी से थोड़ा बहुत एक रफ एस्टिमेट बना सकते हो कि ये 3 4 टाइप के रोल्स हैं जो मुझे टारगेट करने हैं। उस हिसाब से अपना सीवी बिल्डिंग स्टार्ट करो, और उस हिसाब से अपनी तैयारी भी शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो उस एलिमेंट के बारे में। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। Guys, if you feel that these sessions are helpful, do make sure that you like the stream for sure. I am sure that this is something which may not be a lot of trouble for you, but for us it is a lot of encouragement. It gives us a lot of value when we see that the content is getting appreciated, and gives a lot of rigor, gives a lot of enthusiasm the next day when we are preparing content to actually share it with all of you, so that it helps you in your journey. आगे चलते हैं। 15 to 20% आपका यहाँ पे अनप्लेस्ड है समर्स में। समर्स से आप 15 to 20% आपका फाइनल्स में। समर्स में आपका इससे फॉर एग्जांपल 10% 15% कम ही लोग प्लेस होंगे। तो मोटा मोटा अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ग्लिम में 85% लोग प्लेस हो रहे हैं, तो आप मान के चलो कि 70 75% लोग ही समर्स में प्लेस होंगे। समर्स के अंदर आपके प्लेसमेंट लेवल्स कम रहते हैं। फाइनल्स जाते जाते चीजें ठीक हो जाती है, लोग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मार्केट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। समर्स में मैक्सिमम लोग बिना तैयारी के जाते हैं कि बस्ता उठा के सीधा निकल गए। तैयारी नहीं है, समर्स अचानक से आ जाता है कॉलेज जाते ही। आपका 4 to 6 वीक्स में समर का प्रोसेस, समर प्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल अनअवेयर मत जाइए, तैयारी करिए, तैयारी करके जाइए कॉलेज, सीवी बिल्ड करो, डोमेन्स के बारे में पढ़ना चालू करो। एंड इफ यू नीड एनी of our help or support, you can connect with us at the helpline, and be happy to help you out in terms of कि कैसे तैयारी करनी है over the next 2 to 3 months, right? ग्लिम चेन्नई, अगेन ग्लिम चेन्नई के अंदर तुम्हारे आईटी ओरिएंटेड रोल ज्यादा होंगे। तो एक सिंपल चीज समझो कि अगर मेरे पास ग्लिम तापमी जिम है या मेरे पास ग्लिम जिम है, अगर मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड है, आई आई माइट गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्लिम, मुझे वहां पे थोड़े ज्यादा शॉर्टलिस्ट आएंगे। अगर मेरा टेक ओरिएंटेड प्रोफाइल नहीं है, तो फिर ग्लिम और जिम के बीच में आई माइट वांट टू मूव टुवर्ड्स जिम गोवा रादर देन ग्लिम चेन्नई। तो टेक वर्सेस नॉन टेक आपका यहाँ पे बहुत क्लियर डिफरेंशिएटर होता है। ग्लिम के अंदर आपको टेक ओरिएंटेड आईटी, आईटीएस, एनालिटिक्स बेस्ड रोल्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, टेक कंसल्टिंग रोल्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट? प्रोडक्ट रोल्स, प्रोडक्ट सपोर्ट, कंसल्टिंग, आईटी, एनालिटिक्स, आईटीईएस, इस टाइप के रोल्स आपको ग्लिम चेन्नई के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा नीश है ग्लिम का, मैं कहूंगा। ठीक है। टेक एनालिटिक्स रोल के लिए अच्छा है, बाकी कोर रोल्स के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको ग्लिम के अंदर आता है, बिकॉज आपको आईटी अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, टेक वाला एलिमेंट आपका स्ट्रांग नहीं, तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कम आएंगे एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट जिम गोवा, जिम गोवा हैज अ गुड बैलेंस्ड प्रोफाइल, बीएफएसआई, मार्केटिंग और आईटी का एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे बनता है। अगेन सिमिलर रेंज में आपका इन्वेस्टमेंट है, 13 to 14 आपका मीडियन है फाइनल्स के अंदर, 15 to 20% अनप्लेस्ड। अगेन तुम्हारा 300 से 600 कुल बैच साइज अगर हम देखें तो बढ़ जाता है। ग्रोइंग ब्रांड है, ब्रांड इज परफॉर्मिंग वेल। यहाँ पे कैंपस लाइफ अच्छा है, आई हैव बीन टू द कैंपस।
in the month of February, we also we were invited to judge a case competition. I was there to judge a case competition at जिम गोवा. तो बढ़िया है, कैंपस लाइफ अच्छा है. देयर आर आर ओन स्टूडेंट्स फ्रॉम एमबीए लिटमस आल्सो अक्रॉस ईच ऑफ दीज कॉलेजेस. So we keep getting a sense of what is happening inside the college. So overall seems like a good vibe here. ठीक है, तो vibe बड़ा अच्छा है, और तो गोवा वाला vibe भी है. तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे. एंड इसके अलावा सेल्स, बीएफएसआई, एचआर वाले रोल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे. तापमी अगर हम देखें तो तापमी के अंदर अगेन बीएफएसआई, मार्केटिंग, ऑप्स. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट तापमी, दो चीजें आपको बताता हूँ इस साल. तापमी के अंदर जो, फॉर एग्जांपल, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है बेसिस कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज कि माहौल थोड़ा सा तापमी में बदल रहा है. ठीक है. तापमी थोड़ा सा नीचे चला गया है अपने लेवल से. 12 13 13 14 वाले रेंज में मीडियन चला गया. तापमी का जनरली मीडियन हायर रहता है, 15 16 वाले रेंज में रहता था. तो अब आई एम श्योर, आई थिंक कि तापमी मैनेजमेंट एंड तापमी के जो सीनियर अथॉरिटीज हैं वो अभी काफी एक्शन में आ गए हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसके बारे में हमें पता चला. बट in fact we were also approached by the management team at Tapmi to conduct a few important elements at Tapmi, जिसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा. बट वन थिंग विच आई कैन टेल यू इज दैट दे आर इस साल फॉर एग्जांपल एक 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 रिगर, एक फुल ऑन एंथू स्टार्ट से दिखना शुरू हो गया है. तो आई एम प्रिटी श्योर कि तापमी यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा. बिकॉज ये थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गया इस वाले के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है. तापमी, अगर मैं कहूँ, ग्लिम, तापमी, जिम, ये तीनों कंपेरेबल ब्रांड्स हैं, और इंटायरली किसी भी एक सीजन में कोई भी एक दूसरे को बीट कर सकता है. इन तीनों के अंदर डिसीजन मेकिंग आपका इस हिसाब से होना चाहिए कि आप किस टाइप के रोल में जाना चाहेंगे. बैंकिंग, सेल्स, ऑप्स रोल्स आपको तापमे में ज्यादा देखने को मिलता है. सेल्स ओरिएंटेड बीएफएसआई, एचआर रोल्स आपको जिम में ज्यादा देखने को मिलता है, एंड टेक ओरिएंटेड रोल्स आपको ग्लिम में ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. तापमी इस साल बैच साइज भी थोड़ा सा कम करेगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर. तो तापमी इम्प्रूवमेंट तो करने वाला है, वो दिखना शुरू हो गया है. वो चीज ग्राउंड पे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है. एंड आई एम एब्सोल्युटली रूटिंग फॉर each of these colleges to bounce back, do very well. These colleges are very important in the entire MBA ecosystem, because ये colleges अच्छा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी कंपनीज में जाएंगे, and more people will अचीव सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट. तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर. सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर दिल्ली, फोर दिल्ली थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईच ऑफ दीज कॉलेजेस. तो फोर में अगर 21 23, 12 to 14, 11 12 के रेंज में यहाँ पे मीडियन आ चुका है, जो लास्ट रिपोर्टेड यहाँ पे स्टूडेंट्स ने करा था. बैच साइज यहाँ पे एक मेजर परेशानी है. बैच साइज की वजह से फोर दिल्ली अगेन कॉलेज अच्छा है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ डिसेंट कैंपस. बट प्राइमरीली द प्रॉब्लम इज बैच साइज. यहाँ पे बैच साइज एक मेजर समस्या है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा हिट ले लेता है. 25 30% अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनल्स में अनप्लेस रह जा रहा है, तो आप मान के चलो कि समर्स में आपका 60% 65% ज्यादा लोग प्लेस नहीं होंगे यहाँ पे. तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, जिसको आई थिंक फोर दिल्ली को भी एड्रेस करना चाहिए. दे शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन, मे बी रिड्यूस द बैच साइज थोड़ा सा, और ट्राई आउट सम ऑफ दीज इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस, ट्रेनिंग इंटरवेंशंस एक्सेट्रा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेस किया जा सके. एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट ड्राइव ऑल्सो, मोर अग्रेसिव प्लेसमेंट ड्राइव बाय द प्लेसमेंट टीम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स आए एंड लोग प्लेस हों. सो आई थिंक यहाँ पे भी आपका सेल्स, ऑप्स, बीएफएसआई, बैक एंड रोल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, फ्रंट एंड रोल्स थोड़े से कम हैं. एंड आई से अगेन फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड स्ट्रेंथ मॉडरेट, less as compared to each of these colleges. And I think batch size is a major red flag in this college. So I'm hoping कि दोस्तों इन colleges के अंदर आपको समझ में आया होगा. If you will ask me, ठीक है, I think each of these colleges are great colleges. ठीक है.
आई एम श्योर दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स। ऐसा नहीं है, मतलब आसान होता है कि आप यहाँ बैठ के कमेंट करना कि भाई इतने लोग अनप्लेस्ड रह गए, आप काम नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एब्सोल्युटली डू नॉट मीन टू टेल कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं मार रहे हैं, बहुत एफर्ट मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वी कीप कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स जिनसे रियल इन्फॉर्मेशन कॉलेज का हमें मिलता है, कॉलेज के लोगों का, कॉलेज की अथॉरिटीज का, सो वी गेट अ सेंस कि कहाँ पे प्लेसमेंट टीम कैसा काम कर रही है। So one thing which I can tell you for sure is nothing to take away from these colleges. They are absolutely amazing colleges putting in the efforts, but this is something which is absolutely black and white as reported by the students, and something to just give you a sense and to help you, with your decision. If you feel that such sessions are valuable, to make sure that you like it. For people who have any of these colleges, do share it with them so that they can take an informed decision. And if in case you have anything specific to your profile, you have anything specific that you would want to discuss, do drop in a text. We'll be absolutely happy to connect with you and give you a sense of direction in terms of how should you move from here. Okay, let me take up a few more queries. Supriya is saying Micah. Micah is pretty good with respect to marketing. Again, you can expect the median to be around 18, 19 within Micah. I think a very, very good college, no brainer as far as marketing is concerned. So, absolutely fantastic. Utkarsh is saying your thoughts on IMT Hyderabad. I have offers from 4 and IMT Hyderabad. Personally decided to go with IMT H. What do you think? I think Utkarsh, I'll say that I'd rate a 4 a little better. Mostly similar, cohort, which is 4 and IMT Hyderabad. I think if you believe that IMT is an advantage with respect to location, with respect to some level of comfort, whether it is in terms of financials, overall commercials, the vicinity to your hometown, I think that absolutely makes sense. I'd rate 4 slightly better than IMT Hyderabad. Priyanshi saying Tapmi HR, please tell I only have that option or SIIB Pune or KJ Sumaya. I think over KJ Sumaya or SIIB, I think Tapmi is a better option for sure, right? So you can go for Tapmi, Priyanshi, if you have Tapmi. Aside that, if you have, again, depending upon, for example, let's say Tapmi and SIIB, I don't think KJ Sumaya stands a chance against the other two. I think Tapmi is a better option amongst the options that you have at this point in time. Samadrita is saying, sir, currently on wait list of 162 in Tapmi's second list. Can I expect movement in future rounds? Samadrita, you might expect movement in the future rounds. Primarily इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत सारे वेट लिस्ट रुके हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वन सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस के रिजल्ट आने बाकी हैं, मोस्टली सारे ही आईएम्स अभी रिजल्ट अपना अनाउंस करना बाकी हैं। मेजर मूवमेंट आपको तभी देखने मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो सेट ऑफ कॉलेजेस हैं, वेदर इट इज फोर, जीआईएम गोवा, तापमी, ग्रेट लेक्स, एक्सआईएमबी, इन कॉलेजेस को लोग तभी छोड़ के अपना सीट खाली करेंगे जब इनसे बेटर कॉलेजेस आएंगे। इनसे बेटर कॉलेजेस आपके फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आईएम्स एंड आईआईटीज एंड सम ऑफ द नॉन आईएम्स, जैसे कि एमडीआई, आपका आईएफटी दिल्ली, आपका फॉर एग्जांपल एक्सएलआरआई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके रिजल्ट्स जब तक आएंगे नहीं तब तक सीटें यहाँ से हिलेंगे नहीं, वेट लिस्ट बहुत ज्यादा मूव होगा नहीं। डू नॉट लूज हार्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर समर्स, start putting in your efforts for summer placements. While you research about these colleges, you will find all these research on the channel, so do not worry about that. But as far as your preparation is concerned, do make sure that you start with your preparation. You can explore MBA Launchpad. We've already started it. We are doing the sessions on CV, domain, and we are also doing sessions on each of these domains, whether it is finance, financial modeling, your Excel modeling, marketing, your product management, and all the other domains as well. So drop us a text, know more about it, and if you believe that it suits you, if you're able to spare some time over the next month and a half, then you can absolutely go ahead and do it. Swaraj is saying, sir, what about Bitsom with GMAT focus? See, Swaraj, if you are getting Bitsom, I think it's a decent college. Bitsom is a growing college. You can also check out if you are able to get some scholarships also. Many of our students have availed 40% scholarships at Bitsom for their overall profile, which obviously makes it
even more suitable, right? Even more favorable. So I think Bitsom again is a good college. You will have Bitsom again in that 18 to 19 range, or rather 17 to 18 range if I talk about the median at Bitsom as well. So I think again a good college, a growing brand, and backed up by very powerful Aditya Birla Group. So I think no doubt it's going to do well in the future for sure. Right. I'm hoping that this gives you a sense. I'm hoping that I've not missed out on any session. Anybody having any other difficulties or queries, if in case you would want to connect, feel free to drop us a text on the helpline. We'll be absolutely delighted to help you with any queries that you might have. And aside that, if in case you believe that this was a helpful session, do make sure that you like the stream, share it with anybody who has these calls, and also do subscribe to the channel as well. Thank you so much, everybody. You've all been absolutely lovely and patient tonight attending this session, and I'm very, very happy to have been a part of your life, helping you in whatever smaller manners possible. Thank you so much, everybody, for joining, and God bless you all. Take care, and bye bye.